अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एरम अहमद और आप देख रहे हैं नेवर माइंड शो। मेरे साथ द वन एंड ओनली मुबशर लुकमान। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक। आज आपको पता है हमारे कितने अमेजिंग गेस्ट आए हैं? मैं सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ आपके, मैंने खुफिया जो गेस्ट लिस्ट थी वो मैंने देख ली है। देख लिया आपने? हाँ। तो वो गेस्ट के बारे में हम बाद में बताएंगे, पहले हम बड़ा डर लगता है मुझे। अच्छा वैसे बहुत ज्यादती है। नहीं ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਣਾ एरम जी मेरा तारफ नहीं कराते, पता नहीं मैंने तो दुपट्टा गलत पीको करवा ले हैं या सेवियां खांडे मैं स्वाह पा के दौड़ गया या इंज खांडे सी मैं थलो इंज कीता है, ये पता नहीं काहदा मेरे नाल इम्तियाजी सलूक करते हैं। मैं यही बताने लगी थी कि ये हमारी टीम साथ आई हुई है और ये अपना तारुफ अभी करवाएंगे सारे। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਛਾਲਾ ਨਿਕਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ? ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਔਰਤ ਤਾਰਫ ਕਰਾਵੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦਿਲੀ ਸਕੂਨ ਪਹੁੰਚਦਾ। हेलो भैन तेरा तारफ क्यों कराइए? तू कोरोना वैक्सीन ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਆਮਿਰ ਲਿਆਕਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਹਾਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰੂਫ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨੀ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਿਆ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਨੂਰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਨੇ, ਪੈਨਸਲਿਨ ਦੇ ਟੀਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਡਾਂਗ ਕਿਉਂ ਫੜੀ ਜਨਾਬ ਨੇ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਰਸਤੇ 'ਚ, ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ੂਰ ਆ ਸਰਕਾਰ। ਅਰੇ ਮਾਜ਼ੂਰ ਹੋ? ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੁੱਤਾ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਨਾਬ। ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿੰਜਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਹ 2 ਲੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿ 4 ਲੱਤਾਂ ਵਾਲੇ? ਕਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਗਲੀ ਚੋਂ ਤੇ 2 ਲੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪੈਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਗਲੀ ਤੇ 2 ਲੱਤਾਂ ਵਾਲੇ। अच्छा वैसे ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹਦੇ ਕੋ ਜੀ ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਭੰਬੀਰੀ ਵਾਲਾ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਹਾਂ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਭਾਈ। ਇਹਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਤਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗਲ ਘੋਟੂ ਦਵਾਈ ਸੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਅਥਰੂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਮਾਦਾ ਇਹ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਡੀਸਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਣਿਆ ਡੈਂਗੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਸਿਆ। ਭਾਈ ਜਾਨ ਡੈਂਗੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। जरा तारफ ਤੁਸੀਂ मैडम करा दिया करो एरम जी, अल्लाह तारी खैर नहीं, करे। आप खुद तारुफ अब अपना करवा देना। प्रोफेसर ज्ञानी जरा अजमल साहब को बताए ना, प्रोफेसर ज्ञानी पहले सितारों का अजमल हिसाब। साहब पहले का तो बता अजमल दे। साहब का तो तारुफ कराने दें मुझे। अच्छा अच्छा। पहले हमारे पास प्रोविंशियल मिनिस्टर बैतुल माल एंड सोशल वेलफेयर एंड चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी यावर अब्बास बुखारी। राइट, ये आपने That was 3 a- भाइयों का नाम बताया कि एक ही का बताया? ये इतना लंबा था कि मैंने याद करने के बावजूद मुझे पढ़ना पड़ा। Really? The बुखारी entire साहब से डर intro. बड़ा लगता वो कहते हैं इट्स अ माउथफुल। It's a mouthful. बुखारी साहब ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ से ਨਾਮ ਹੀ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਨੋਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਅੱਲਾਹ ਟੈਨਿਓਰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਟੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਫਿਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਲੇਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਨੇ। ਇਹ ਜੇ ਸਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਟੈਕਸ ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਮੋਹਰਾਂ ਜੇਬ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। नहीं लेकिन ये जो बंदे का ਅਸੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Really? ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਸਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਸਰ ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕਰੋੜ ਭਾਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਡਾਂਗ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰੇਗਾ। ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ। ਸਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਰਗਾ ਤੇ ਜਮਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀਟੀਆਈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੁੱਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ है ना किसी, ਹਾਂਜੀ बस। अच्छा, दूसरे गेस्ट का बताने दें। वेरी वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, सितारों का हाल बताते हैं, अजमल रहीम साहब। हमारे दोस्त हैं। और आपके दोस्त, आपका कौन दोस्त नहीं? नहीं, मैं एक्चुअली अजमल साहब बाद में मेरे दोस्त बने हैं। इनके मरूम भाई डॉक्टर अकमल जो थे ना, जी, वो असल में मेरी और उनकी दोस्ती थी। अच्छा, तो वो बस अल्लाह ने उनको अपने पास बुला लिया, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। आमीन। तो हम जब अजमल साहब को मिलते हैं तो एक्चुअली हम बैक वक्त 2 लोगों से मिल रहे होते हैं। अच्छा। ਇਹ ਵੀ ਸਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ नहीं ਦੱਸਦੇ। है दस दो तुसी प्रोफेसर ज्ञानी ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸੋ। नॉर्थ स्टार, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਟਾਰ? नॉर्थ स्टार। ਨਹੀਂ ਐਡਾ ਡੀਪ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਤਾ, ਇਹਨੇ ਕੋ कहते ना फुल स्टॉप। ये बताइए जी, पीटीआई की हुकूमत रहेगी आपकी किताब में कि जा रही है? सर मेरे हिसाब से जैसे पहले भी बताया था कि पीटीआई की हुकूमत अभी चलेगी सर, लेकिन तो हम कहीं और चले जाएं तब तक के लिए, जब तक ये चल रही है। सर वो ਉਹ इसमें ਭਾਈਜਾਨ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਿੱਧਾ ਦੱਸੋ ਜਨਾਬ ਕਿ 520 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸਾਨੂੰ ਮੁਰਗੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ? अरे और थोड़ा ना और बढ़ेगी काम। सर ये जो महीना गुजर रहा है, ये पीटीआई को बहुत टफ टाइम मिलेगा। और जो बजट सेशन में आप देखिएगा कि बहुत हुल्ला गुल्ला होगा, सर क्योंकि जी मुझे ऐसे पीर का बताएं जिसके पास मैं जाऊं, नीचे तावीज़ वगैरह भी उनसे लूं, उनके आगे मैं फूल शूल भी रखूं, सब कुछ रखूं, और उस्मान बुज़दार से जान छूं। सर वो मैंने जैसे आपको पिछले प्रोग्राम में कहा था कि उस्मान बुज़दार वो ट्रेन के डब्बे हैं जिनमें जान नहीं है, उसको इंजन खींचता है। जब तक इमरान खान का इंजन उनके साथ लगा वो चलते रहेंगे, जिस दिन वो चाहेंगे वो चले जाएंगे। वो अभी तो जाते पूरी पार्टी के लिए, जब तक इमरान चाहेगा तो पूरी पार्टी चलेगी, वो तो कोई बात ही नहीं है।
ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਸਮਾਨ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦੇ। अच्छा जी, आपका मैंने अभी जायजा देखा है जो अजमल साहब ने बनाया, लेकिन मैं उसकी तशरीह नहीं करूंगा क्योंकि मैंने तशरीह की तो बुज़दार साहब आपके पीछे पड़ जाएंगे। जिसको पता चलता है ना कि वज़ीर आज़म पसंद करते हैं या कोई एचएसोनियन है, उस्मान बुज़दार साहब उसके पीछे पड़ जाते हैं। ਉਸਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ- ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? वैसे मैं एक बात बताऊं कि बाकी लोगों की एग्रीमेंट्स डिसएग्रीमेंट्स अपनी जगह हैं, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पंजाब अगर आप देखें कि उस्मान बुज़दार साहब ने जो डिस्ट्रिक्ट वाइज पैकेज लेके आए हैं, ये एक बहुत हद तक जो डेवलपमेंट है उसको इवनली स्प्रेड आउट करने की एक कोशिश है। कोई डिस्ट्रिक्ट अपने आप को ये फील ना करे कि हमें नहीं कुछ मिला। आई गिव एन एग्जांपल कि आपको कम से कम 5-6 अरब से लेकर 18 से 25 अरब रुपए का पैकेज फी डिस्ट्रिक्ट है, और इसके अंदर हर पार्लियामेंटेरियन से पूछा गया कि आप अपने प्रोजेक्ट्स को प्रायोरिटाइज करें इन द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक, कि आवाम को जिससे ज़्यादा फ़ायदा हो। ये नहीं कि मैं बोलूँगी जी एक ओवरहेड ब्रिज अटक से मोटरवे तक बना दें, ख्वाहिश तो हो सकती है लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं है, फिजिबल नहीं है। तो उसके अंदर जब हम प्रोजेक्ट्स देते हैं और उन प्रोजेक्ट्स को फिर यहाँ पे स्क्रूटनाइज करते हैं, फिर हमारे साथ उसके ऊपर एक आर्गूमेंट होती है कि ये क्यों नहीं। तो वो बड़ा लॉजिकली इस चीज़ को आगे लेके चल रहे हैं, और ये वो चीज़ है कि जिसको शायद अवाम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी कि जितनी मुखालफत सीएम साहब को देखनी पड़ती है, उसके बावजूद उनने इस कान से डाला इधर से निकाला, वो अपने कामों की तरफ लग पड़े। बिल्कुल लगे थे। नाजरीन, आपने मजीद अच्छी गुफ्तगू सुननी हो तो पीटीवी लगा लें। नहीं, ऑनेस्टली जो मैं बात कर रहा हूँ इसको प्रैक्टिकली ऑन द ग्राउंड भी आप मैं देखें। रोना आ रहा है मुझे, अब आप रुलाएंगे मुझे। इतनी अच्छी अच्छी बातें आप कर रहे हैं, मैं रो सकता हूँ। मैं लोगों को देखें, हर किसी में पॉजिटिव एंड नेगेटिव है, कमी बेशी हर किसी साहब का में। नेगेटिव क्या है? मैं कहता हूँ जो भी है वो उसके ऊपर भी आते हैं, और आपको पता है आई स्पीक वेरी ओपनली उसके अंदर, जिसकी वजह से मुझे फिर बहुत सारी ब्रंट भी फेस करनी पड़ती है। लेकिन मैं बताऊं आपको कि ही हैज़ डेवलप्ड ओवर टाइम एज अ सीएम, और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे पिछले सीएम साहब करते थे कि गम बूट्स पहन के बारिश में चले गए, ये किया वो किया। खुदा की इनको कसम, हालांकि बड़े इनको बोला लोगों को गया, आपको बड़े अच्छे लगना शुरू हो गए। सुनिए ना, उनको बोला गया कि आप ये करें, लेकिन उन्हें डिलिबरेटली इस चीज़ों से दूर है। उनका बूट कहाँ से लाऊंगा? देखिए वो बूट की तो अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जो इन्हें इवनली डिवाइड किया है डेवलपमेंट पैकेज को, एंड आप नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स देख लें, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ कमिंग अप, अभी ये हम लोगों तक है कि हम उसको आगे से कैसे हैंडल करते हैं। अब इसका सवाल मैं इरम से पूछता हूँ, अगले इलेक्शन में आप वोट किसको डालेंगी? मैं कुछ भी नहीं कहना चाहती अभी। आपको आई पता चल कीप गया? माई कॉमेंट्स रिजर्व बिकॉज द थिंग इज, देखिए मेरी बात सुने, आप ज़रूरत से ज़्यादा, मतलब बुज़दार साहब नो, आप अपनी बातें कर लें बट नो, नॉट बुज़दार। देखिए मैं आपको बताऊं, आपने वोट बुज़दार साहब को नहीं डालना है, आपने अपने कैंडिडेट को डालना है। मैं अमूमन लोगों को ये कहता हूं, फॉरगेट द पार्टीज। बट अगर उसके बाद बुज़दार साहब आके बैठ जाते हैं अपने कैंडिडेट को वोट डालने के बाद, तो ऑप्टिक्स भी नहीं है और काम भी नहीं है। देखिए आई एम सॉरी। देखिए मैं आपकी बात से मैं डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वेयर आई एम डिसएग्रीइंग इज कि इन दिस थर्ड ईयर ऑफ पीटीआई गवर्नमेंट, आप अगर अभी जाके डेवलपमेंट पैकेजेस को देखें, इन द नंबर ऑफ रोड्स बीइंग मैं रीडन। आपको प्रॉब्लम बताता हूँ। अब ये तो कोई टॉक शो तो नहीं है कि जिसमें हम ग्रिलिंग करें, लेकिन मैं आपको एक जनरल प्रॉब्लम बताता हूँ। प्रोफेसर ज्ञानी बताएंगे। मैं बताता हूँ जी, प्रोफेसर पहले मैं बता दूँ, आपके 36 स्पोक्स पर्सन हैं पंजाब गवर्नमेंट के। अगर ये बात आपको करना पड़ रही है और आपके स्पोक्स पर्सन नहीं कर रहे, तो एक गैप जो अवाम के और हुकूमत के दरमियान हो रहा है, उसका फिर जिम्मेदार कौन है? मैं टोटली आपसे एग्री करता हूँ इस बात के ऊपर कि आपको जो स्पोक्स पर्सन चाहिए वो इस किस्म के चाहिए जिनकी बातों को लोग एक्सेप्ट करें और एजुकेट करें। यस, और इसके अंदर हमें बताना क्या है, अवाम को सेंसिटाइज करना है कि ये गवर्नमेंट क्या कर रही है जो पिछली गवर्नमेंट से बहुत बेहतर है। एक चीज़। नंबर 2, आप जब बात करें और आप बात ऐसी करें जहाँ पे झूठ ना हो। सबसे बड़ी जो क्वालिटी लीडरशिप की होती है कि लोगों का एतमाद, और जो बात आप मुंह से निकालें वो लोगों को पता हो कि ये सच है, इसके अंदर कोई झूठ नहीं है, इसके अंदर कोई फिगर फजिंग नहीं है, इसके अंदर कोई ट्विस्टिंग नहीं है। वो उसको अपनी मर्जी के मुताबिक लोगों को नहीं दिखा रहे, ऑन द ग्राउंड जो है वही है। बुज़दार साहब की कामयाबी का राज मैं असल में आपको बताऊं, उनके जितने वजीर हैं ना, हाँ जी, हाय हाय हाय, वो आपको
मुतमिन बहुत अच्छा कर लेते हैं। वो कुछ करें या ना करें, उनके वजीर मुतमिन करें। बुखारी साहब, मैं तो बड़ी दूर से सर आपको मिलने आया हूँ, मुझे एक व्हील चेयर ले दें, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास, अपना BMW व्हील चेयर या ऑडी तो मेरी बनती है, अगर ऑडी नहीं बनती वैसे तेरे मुंह के हिसाब ਦੇ ਨਾਲ ऑडी नहीं बनती, तेरी आईडी किते बनती है वैसे, वो ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਸੀ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਾਈਜਾਨ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਮੰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਮੰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸਿਰਫ ਤਸੱਲੀ और ਦਿਲਾਸਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ सर ਹੋਰ जी ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। पहली दफ़ा बुखारी साहब मैं बड़ी आस उम्मीद ले के गल तो सुनो, मैं भी रोना शुरू कर देवा। ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰੋ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਚਲੋ ਹੋਂਡਾ ਸਿਟੀ ਲੈ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ इससे राजी हो हाँ जो सर होंडा सिटी व्हील चेयर चाहिए हाँ जी हो जाएगी। और दसो problem फॉर द फर्स्ट टाइम अब मैं आपको बड़ी सीरियस बात बताता हूँ। ये प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान में बेगरी जो है एक बहुत बड़ा माफिया, यस और ये बड़ा ट्रेंड हो रहा है, बिलियंस का काम हो रहा है, और हुकूमत इसको ख़त्म करने के लिए कुछ नहीं कर रही। मैं आपको मुबशिर बताऊं कि ये बेसिक ताल्लुक़ इसका अवाम से और हमारे नरम दिलों से है। हम लोग सदका जब देते हैं, अभी आप यही डांग मैं इनको मारूंगा ना, ये दौड़ना शुरू हो जाएंगे, बिल्कुल ये माजूरी खत्म हो जाएगी। सही बात और ये हर बेगर का आपको बता रहा हूँ। मैं आपको जो ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਅਗਰ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਮਿਲ ਜੇਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਸਭ ਕੀ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਟੁੱਟੀ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਅਗਰਬੱਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਛੋਟੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰਫ ਕੁੱਤਾ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਟੁਰ ਪੜੇ। ਇੰਨਾ ਖਰਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। मैं और खरा सच जरा दस रहा। इसके साथ मुसीबत हम लोगों की ये है कि हम लोग सदका ये समझते हैं कि ट्रैफिक लाइट पे जो खड़े हुए हैं, हम उसको 10, 20, 50 रुपया, 100 रुपया दे देंगे तो उससे हमारी बलाएं टल जाएंगी। नो डाउट हमारी अपनी नीयत काउंट करती है। इस्लाम में सबसे बड़ी चीज़ है नीयत आपकी क्या है। लेकिन वो जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है कि वो वहाँ पे एक सप्लाई पैसे का आ रहा है तो डिमांड जो है वो बेगर्स आते हैं। इसके अंदर मुबशिर हम लोगों ने एक केस हमारे सामने आया जिसके अंदर पेशावर से एक बच्चा अगवा हुआ, और जिस बंदे ने उसको ख़रीदा उसने उसके पहले हाथ और उंगलियां तोड़ दी। जी आप कल बता रहे थे। ठीक है ना जी। और उसमें हुआ ये कि उस बंदे के अपने बच्चे, ये जो टॉप 5 के आप स्कूल्स जो हैं ना, जो नाम हैं बड़े बड़े, उनमें उसके अपने बच्चे पढ़ रहे थे और ये बच्चा भीख मांग रहा था। ये प्रॉब्लम ये हो रहा है जब आप अपनी BMW से निकल के या शीशा नीचे करके 100 रुपया देते हैं, मैं 10 रुपये देता हूँ, हर अपने औकात के मुताबिक जो भी देता है, उसमें फिर वो बेगरी को एक सप्लाई मिल रही है पैसे की। तो ये बेकारियों को मत पैसे दें, जितनी मर्जी आपके आगे आके ड्रामा करें, क्योंकि ये बड़ा ट्रेंड है। आपको इसके एक छोटे से बात बताता हूँ, फिर आगे निकलते हैं कि जो आदमी चल नहीं सकता, हिल नहीं सकता, वो आपको रोज़ एक चौक पे एक टाइम पे नज़र कैसे आता है। उसको कोई लेके आता है, उसको कोई ट्रांसपोर्ट करता है, उसको कोई उसकी शिफ्ट ख़त्म होने के बाद वापस लेके जाता है। तो ये बहुत बड़ा बिजनेस है। बट अजमल भाई, मैं इस एक सेकंड में इसे ख़त्म करने से पहले इस टॉपिक को कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ, ये तो मेरी पहली व्हील चेयर भी खोल फिरना है। वो असल दी पंजाबी से कहेंगे हब्बा कुछ मिलेगा, और इंतज़ार करो, सब्र सब्र। इसमें मुबशिर सबसे बड़ा जो इशू आ रहा है वो हमें ये आ रहा है कि जब हम लोग इनके पीछे जाते हैं तो लोग पब्लिक शो, दिस इज़ अ पब्लिक गवर्नमेंट पार्टनरशिप, हम लोगों ने मिल के करना है। लॉज हम लाएंगे, लेकिन आप लोगों से आपसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पब्लिक रिस्पॉन्सिबल हो। जैसे मास्क पहनना है, इसके अंदर हम लॉ लेके आ रहे हैं जिसके अंदर मिनिमम पनिशमेंट्स की बातें कर रहे हैं। हम टारगेट कर रहे हैं उन माफियाज को कि जो आ जाता है सर, इम्प्लीमेंट भी तो होना होगा नहीं, ना। इसके अंदर हमें सेंसिटाइज करना पड़ेगा। वो मेरे इंशाल्लाह मेरी नीयत है कि हम ये करेंगे। इसके अंदर एक चीज और नोट करें, सड़क पे ट्रैफिक ही सही कर लें, आपकी बड़ी बहुत नहीं सही बात है। इसके अंदर एक जो बड़ी चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप अमूमन इन औरतों को देखें जिनके पास बच्चे ने उठाए होते हैं, सर्दी हो, सख्त सर्दी, सख्त गर्मी, बच्चा रोता नहीं है। बच्चा किराए का होता है, उसको रेंटेड है, उसका अलग रेंट है, उसका अलग रेंट है, और जिसने बेलचा उठाया होता है उसका अलग किराया है। और उसको इतने ये अपने नशावर दवाओं के इंजेक्शन और इतनी चीज़ें उस बच्चे को दी होती हैं, वो तो गर्क हो गया, लेकिन हम उनको इनकरेज कर रहे हैं पैसा दे के। ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪੈਕੇਜ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਈਫੋਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਲੈ ਦਿਓ, ਚਲੋ। मैं तो सब पहले वो ਤੁਹਾਡੀ वो होंडा पीटीआई ਦੀ व्हील चेयर के राजी हो गया तो फिर लेंदी है, देंदी नहीं। अब मैं एक दफा एक बंदे को लेके आया हूँ प्रोफेसर ज्ञानी के पास। जी सर। मैं कहा ज्ञानी साहब ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਵੇਖੋ ਦੱਸੋ। ज्ञानी साहब ने कहा ਉਹ 7 ਸਾਲ ਤੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, 7 ਸਾਲ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ है। मैं क्या ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ आदत हो जाएगी। कोरोना की क्या सिचुएशन है, कोरोना कब खत्म कोरोना होगा? सर डिफ्यूज़ हो गया काफ़ी हद तक, थोड़ा सा अभी फिर बढ़ेगा,
آپ کے جنرلی ایسے لیک آف سر پراپر یہ میڈیکل ہمارے کیئر. اوپر حکمران کو نہیں فوت ہوتے ایسی چیزیں. سر وہ ہوتا ہی ہے نا عوام کو کہ ہوتی ہے. جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی آنیسٹلی یہ آپ بھی جانتے ہیں, آپ کے تو دوست ہیں مجھ سے زیادہ قریبی ہیں آپ کے, اتنا گڈ انٹینشن والا انسان اس قوم کے لیے جتنی اچھا ہم جب بھی جا کے بیٹھتے ہیں آنیسٹلی انسپائر ہو کے آتے ہیں, جس قسم کی وہ ہمیں پیپ ٹاک دیتے ہیں کہ شاباش اٹھو شیرو نکلو اور کام کرو اپنا, وہ اس کے اندر ایک فرور ایک جو جذبہ ہوتا ہے نا وہ بڑھ کے آتا ہے ان ہمیشہ. کو یہ بتا دیں شیر پی ایم ایل این کے ہیں, پی ٹی آئی کے ٹائیگر ہے. سر وہ دراصل میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے شیر کا لبادہ اوڑا ہوا ہیں لومڑیاں چلاکی سے ہر چیز ہر جگہ سے جو کچھ ملتا ہے کھا جاتے ہیں. سر میں تو اتنا جاننا کہ تاری اپوزیشن جیڑی ہے نہ نون لیگ ہے نہ پیپلز پارٹی, تاری اپوزیشن نے آٹا چینی پٹرول بالکل صحیح گل کی نے, بالکل صحیح گل کی نے. یہی چیز وری کر رہی ہے خان صاحب نو, جس کی وجہ نال پورا زور اسی پاسے سٹے نے کہ مہنگائی نہیں. اور جانا نہیں آٹا خریدنے کے لیے, تو ہمیں بتائیں ہم کیا کریں. سر یہ میں خود بھی اپنی گروسری میں خود کرتا ہوں اور میں یہ ریئلائز کرتا ہوں چیزیں بہت مہنگی ہیں, اور اس کو اگر کوئی بولے کہ نہیں ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے. دیکھیں خان صاحب تسی جی کچھ کہو گے وہ پھر جواب میں دینا, لیکن خان صاحب اس کو بڑی سیریسلی ٹیکل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور جس کی وجہ سے انہیں 2-3 دفعہ اپنی ناراضگی کا اظہار بھی کیا. اس کے اندر پرابلم کیا آتا ہے کہ جو ہمارے پرائس میجسٹریٹس وغیرہ ختم ہو گئے پچھلی گورنمنٹ سے ختم کیے, یہ نہیں ہونے چاہیے تھے. دیکھیں کئی چیزیں جب آپ ختم کرتے ہیں نا ان کی ریپلیسمنٹ اس سے بہتر ہونی ضروری ہے. مجھے نا اجمل صاحب سے بڑی شکایت ہے. پلیز بتائیں کیا. میرے ساتھ جتنے بندے ان کو ملتے ہیں کبھی اچھا ہاروسکوپ نہیں بتایا, اور جتنی بندیاں ملتی ہیں ان کے رشتے بھی آنے والے ہوتے ہیں, ان کے آگے لاٹری بھی نکلنے والی ہوتی ہے. پتہ نہیں یہ صنف نازک میں آپ کے کیڑے جو ہیں کیوں کام آج کر رہے پھر ہیں. میں اجمل صاحب سے اپنا بھی ذائچہ نکلواتی ہوں سب کے سامنے نکلواتے ہیں ذائچہ تو بھی. مطلب ذوق کے بندے ہیں. ہاں سر میرے تو ڈخانا مل گیا ہے نا. ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਵੀ ਛੱਡੀ, ਆਈਫੋਨ ਵੀ ਛੱਡਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ 157 ਇੰਚ ਦੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਐਲਈਡੀ ਲੈ ਦਿਓ. ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚੀ ਦਾ میں اتنی چھوٹی خواہش خدا دے دے انہاں لے منگنا ہے تے کچھ بہتر چیز منگنی سی. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 1.25 ਲੱਖ. نہیں نہیں میں تو کدے چھوٹی کوئی فرمائش کرتا پھر تو میں لفٹ ہی نہیں کرا. ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੁਬਸ਼ਰ ਲੁਕਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਦਿਓ, ਕੁਝ ਲੈ ਦਿਓ. اے کچھ بہتر اے کچھ ہن بہتر گل کیتی نے. نہیں لیکن گل ہے وے کہ وہ واسطے لتاں ٹھیک کرنی ہے پہن. آپریشن کروانے ہیں انہاں دا آپریشن کروانے. میں آپ کر دینا بغیر اینستھیزیا تے کرنا, پھر دیکھنا کس طرح دوڑتا ہے. اے سیمپل پھر ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ. بھائی جان ہے بیکاری ہے اس ملک دے جڑے نے جنہ فراڈ کر دے نا. اچھا جی منسٹر صاحب ایک بات تو بتائیں, جو اس ملک میں ٹیکس دیتا ہے اس کو کیا فائدہ ہے, اور جو ٹیکس چوری کرتا ہے اس کو کیا نقصان ہے؟ دیکھیں یہی سب سے بڑا پرابلم ہے. آپ کا جو ٹیکس پیئنگ پبلک ہے بہت کم ہے, اور اس کے اندر ہمارے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں ٹیکسیشن سسٹم جو ہے اس کے اندر غریب بہت پستا ہے. آپ ہر دودھ کے ڈبے پہ جوس کے ڈبے پہ بوتل پہ اس پہ آپ ٹیکسز پے کر رہے ہیں, اور اس کے اندر جو ٹیکس چوری کرتے ہیں اور جس طریقے سے چوری کرتے ہیں ان کے پیچھے ایکسپرٹس بیٹھے ہوتے ہیں, ان کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ طریقہ ہے, لکونز ہیں, یہ آپ کے پاس ایک چور دروازہ ہے, اس کے تھرو وہ کریں. ہمیں اپنے ٹیکس کلیکشن سسٹم کو ہمارے آفیسرز کو بہتر گروم کرنا پڑے گا. ہمیں ان کو ایک سینس آف رسپانسبلٹی کے معاملے میں سینسٹائز کرنا پڑے گا. ہم لوگوں کا ایشو یہ ہے کہ جیسی عوام ہے ویسی حکومت ہے, جیسی عوام ہے ویسے بیوروکریسی ہے, جیسی عوام ہے ویسے سب کچھ ہے, کیونکہ عوام میں سے سب اٹھ کے آئے ہیں. اس کے اندر اگر آپ بولیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت اگر میں کلیم کروں کہ سب آنیسٹ ہے, نہیں ہے. اگر ہم بولیں کہ سب بہترین ہے, نہیں ہے. یہ کمیاں بیشیاں ہیں, ہمیں یہ لے کے ساتھ چلنا ہے. جو سب سے کمزور بندہ لنک ان دا چین ہوتا ہے اس کو ساتھ لے کے چلنا ہے, تب بھی چیزیں سکسیسفل ہوتی ہیں. اور جہاں تک یہ ٹیکس چوروں چل رہے ہیں کے پی کے میں بھی ادھر بھی جو سب سے کمزور بندہ ہے آپ کا, اس کو آپ ساتھ ہی اوپر لے کے چل رہے ہیں. کوئی ایسی گل نہیں. بشر صاحب خیالی پلاؤ پکانا کیڑی گل ہے؟ میں کہ پکانا ہی ہے تو پھر 2-4 ڈشاں اور بھی پکا لو, یہ خیالی ہے کہتے ہیں. ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੋ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਆਏ ਨੇ, ਬੁਖਾਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜੀ. ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰਨੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ. ਠੀਕ ਹੈ. ਤਿੰਨਾਂ ਪਈਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈਵੀ ਬਾਈਕ ਲੈ ਦਿਓ. ਮੈਂ ਵਨ ਵੀਲਿੰਗ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬਣੀਆਂ. ਇਹ ਤਾਂ ਦਬਾ ਦਿਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਮੈਂ نہیں ਜਾਊਂਗਾ. یہ دیکھیں منسٹر کو غلط بات بتا رہے ہیں پہلے, اور پھر ایکسپیکٹ کرتے ہیں منسٹر ان کی بات کو مانے. انہوں نے رشوت نہیں آپ کو آفر کی. سر رشوت کی بات نہیں ہے, نہیں, لیکن ایک داد دو پی ٹی آئی والے کہ وہ گل بڑی معقول کر کے تھوڑی گل نو رد کر دینے. نہیں, بڑا اچھا لارا لگا کے رکھتے ہیں, یہ بات ہے. لارا بہت لمبا. اس میں لارا تو نہیں, میں کہہ رہا ہوں غیر قانونی کام کے لیے مجھے کہہ رہے ہیں آپ نے تو مبشر کے جہاز کا لارا غیر لگا قانونی دیا. کام, اور ہم
अच्छा, ना, कोई ना, नहीं, मेरा जहाज उसको देना कानूनी था ना। वो सर इस जमात कितने ਲਈ मासूम है कहते ਇਸ ਜਮਾਤ ਲਈ ਕਿਉਂ ਗਾਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲਾਰਾ ਲੱਪਾ ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਅੱਡਾ ਚਪਾਟੀ ਚੱਪਾ ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਇਹ ਉਹ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ BMW ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਈਕ ਤੇ ਆ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਪੁਲ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਖੋਰੇ ਮਾਈ ਕਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰੂਗਾ प्रोजेक्ट दिखाना। अच्छा अजमल साहब, आपसे पूछना था कि कभी ऐसा हुआ है आपने कोई प्रोडिक्शन दी हो, बहुत फेमस हुई हो और बाद में वो पूरी ना हुई हो? नहीं, इसका जवाब मैं दे सकता हूँ। इन्होंने मेरे प्रोग्राम में एक प्रोडिक्शन दी, बड़ी खौफनाक प्रोडिक्शन थी, और उस वक्त मैं सलमान तासीर साहब के चैनल में था, बिजनेस प्लस में। इन्होंने प्रोडिक्शन दी कि अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की है लेकिन बेनज़ीर नहीं है उसमें। तो हम सारे पीछे पड़ गए कि ये कैसे हो सकता है कि बेनज़ीर के बगैर, इनका मुझे ये नहीं पता, लेकिन बेनज़ीर उसकी हुकूमत ख़त्म हो रही है पीपल्स पार्टी की नज़र, और फिर बेनज़ीर असैसिनेट होगी। प्लीज एलैबोरेट करें थोड़ा सा। तो वो दोनों उस वक्त दोनों जड़वा भाई इनके प्रोग्राम में आते थे, और उस वक्त ये बहुत टफ टाइम देते होते थे। तो इन्होंने एक सवाल किया कि अगली इलेक्शन कौन जीतेगा, तो हमने कहा कि पीपल पार्टी जीत जाएगी, लेकिन बेनज़ीर पीछे बैठ के हुकूमत करेगी, फ्रंट पे नहीं होगी, और दिसंबर का आखिरी हफ्ता उसके लिए बहुत बुरा होगा। एंड सेम हैपेंड। नहीं, अगर इतना क्लियर पता चलता है तो कभी आपने अपने सितारे देखे और कोई इस तरह की फीलिंग पता चली कि आगे क्या उसके बाद शादी हो गई थी इनकी। देखें, ये मैं थोड़ा सा मुख्तसर सा एक्सप्लेन जी, करता हूँ। please. दिस इज़ स्टैटिकल एनालिसिस। ये जो आपकी लिखी हुई, जो मैंने आपको ये देखा, ये लिखी हुई फिक्स डेस्टिनी है जिसको हम लोग रीड करते हैं। जी। ठीक है, उस पे आप स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला लाए 10% प्लस माइनस हो जाता है। जी। अदरवाइज ये इतना एक्यूरेसी पे आ जाता है कि इस पे काफ़ी कि आप एग्जैक्ट टाइम डेट भी निकाल लेते हैं। मास वाई एक शख्स के, बाकी हर चीज़ ठीक निकलती है। वो है मुबशर लुकमान अब मेरे साहब। पता नहीं 150 डिग्री ऑपोजिट आता है। और मेरे अकेले का नहीं, वो जितने एस्ट्रोलॉजर थे उन सब के हॉरोस्कोप इनके आगे ना ये गलत डेट ऑफ बर्थ बताते होंगे ना, वजह नहीं ये नहीं, है। मैं बताता हूँ। इनके पास सब कुछ आता है, लेकिन ये शो नहीं करते, या हमें ना लेट डाउन कर देते, कहते नहीं ऐसे नहीं हुआ। कई चीजें तो आपको पता है ना, जी सर। आपके सामने की हैं। देखिए, मैं उसकी वजह के ऊपर खुदा भी तो है ना। जी सर। तो आप और मैं जितने मर्जी प्लानिंग कर लें, एंड में अल्लाह की मर्जी, किसी को नवाजे या इनका ना नवाजे। एक्सीलेंट हॉरोस्कोप, एक्सीलेंट, बट वो ये अल्लाह की मर्जी सही कह रहे हैं ये कि रुकावटें हैं। अच्छा, ठीक है। बुखारी साहब, आप बिलीव करते हैं इसके अंदर? देखिए, ये इल्म तो है, जी। नो डाउट अबाउट इट, लेकिन जो हमें जिसको रूहानियत कहते हैं ना, उसके अंदर हमें बताया जाता है कि जो इल्म है वो अल्लाह पाक के पास ही है। बिल्कुल। ये वो कारिंदे हैं कि जिनके पास कुछ इल्म है, कुछ, सही कह और उस कुछ इल्म के अंदर ये ऐसे, मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक अंधा इंसान है, वो अंधेरे में यूं हाथ मारता है कोई चीज़ पकड़ने के लिए, उसके हाथ में एक दो चीज़ आ जाएंगी, सारी नहीं आएंगी। ਦੱਸੋ ਮੁਰਸ਼ਦਾ ਲੋ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿੰਨਾਂ ਪਹੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਕਲ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਕਿ नहीं? बहुत कुछ मिल जाएगा सर। काइंड हार्टेड बहुत दूर से पर्सन है। उम्मीदें लेके आया हूं सर आपके अच्छा, एरा- पूरी गल तो सुनो ना अगले दी। ही इज अ काइंड हार्टेड पर्सन। तरीके से मंगो तो मिल जाएगा। ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੋ ਤਰੀਕਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਲੋਐਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਪਹੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੰਗ ਲਵਾਂ? ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬਬ ਬਣਾਓ, ਦੇਖੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। और भाईजान है तो ऐसे अपना वो तेज बंदे ने, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹ ਫਰਦਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਕੱਟੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਹਾਂ, ਮੁਰਗੀਆਂ ਰਖਵਾਈਆਂ ਸਨ, ਤੂੰ ਰੱਖੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅੰਡੇ ਰੱਖੇ? ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣ ਦੇ ਨੇ ਕੁਲਚੇ ਟਕੇ ਨੇ। ਲੱਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ। ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਰਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਲੀ ਸੀ, ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ, ਐਡੀ ਪਿਆਰੀ, ਵੱਡੀ ਹੋ ਕੇ ਐਂਕਰ ਬਣ ਗਈ। ਅਰੇ ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਐਂਕਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਨਾ ਲੈਣਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਜਾਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਰਮ ਜੀ ਦੱਸ ਦੇਣ। नहीं, मैंने नहीं बताना, मुझे अजमल साहब कुछ बताना। मैं भी बता देता हूँ, इस वेले कोई पैसा नहीं, क्योंकि अपना जड़ा है ना, एक किराए का किराए का गेटअप लेकर आए हैं। किराए दे ठीक कपड़े है, ने। हाँ, समझ अपने गई। कपड़े दूजे पासे पे ने। वो जो एंकर कह रहे हैं ना कि उनको सब कुछ पता होता है, उनको ये पता है इस चादर के नीचे टांगे काम करती हैं नहीं करती। ਤੇਰਾ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਵਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਰੱਖਾਂ
मुबश्शिर लुकमान ऑल ओवर सर्जन। ऑल ओवर सर, क्या बात है। वेरी गुड। हाँ जी, आप क्या कह रही अजमल हैं? साहब कुछ कहने लगे। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, जैसे गूगल मैप आप इस्तेमाल करते हैं ना, उस पर रास्ते में लाल निशान भी आ जाता है, येलो भी आता है कि आगे ये, इसी तरह ये भी इल्म जो है ना एक गाइडलाइन है। और मैं इस पे ना रिसर्च बहुत की है। उस अपने रिसर्च इल्म की और रिसर्च की रोशनी में बताएं कि इरम रणबीर कपूर को कब मिल रही है? वो बातें छोड़े सर आप। ये क्यों मिले, वो आके मिल जाता हाँ, है। तो वही ना। क्या बात है, ये बात, क्या बात है। बिल्कुल वो आपकी हैंड्स, वो आपकी भी- जो पहले बात थी ना, वो खवातीन के मामले में, वो अभी आपको सच हो रही है। मान लिया। ਤੁਸੀਂ देखे ठरकी आदमी किस तरह पड़ेगा। सर शी इज सिटिंग विद यू एंड यू आर नॉट ऑर्डिनरी। मैडम रणबीर कपूर ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਮੀਲ ਫਜ਼ੂਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾ। थैंक यू सो मच। ਅਜਮਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੋਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਵਾਜਾ ਸਰਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। अच्छा छो है गलत। अच्छा, वो मैं बता रहा था कि आप इस पर जब रिसर्च की ना, तो बेसिकली हमने रिसर्च की जो हमारे माशरे में सबसे ज़्यादा डिवोर्सेस हो रही हैं ना, वो क्या वजह। एक बैड पैच आता है जिसमें वो पीरियड बहुत ज़्यादा कहते अग पख जानी। जी। सो 57 एक्सपेरिमेंट्स थे हमारे, 56 डिवोर्स रुकी और एक कह के रुकवाई। अभी रिसेंटली 2 केस आए हुए हैं, दोनों डिवोर्सेस रुक के वो दोबारा पैच अप हुआ। ठीक है, सिर्फ मार पड़ती है जब तीसरा बंदा आप डालते हैं, वो उधर भी जाके चुक के रखता है, उधर भी चुक के रखता है। जब दोनों मियाँ बीवी खुद बैठ जाएं तो उनके सिर्फ प्रॉब्लम होते हैं वो प्रॉब्लम जो आप आम जिंदगी में किसी के साथ हमारे ना डिस्कस नहीं कर पंजाबी सकते। की एक सेइंग है, सर वो पंजाबी में कहते हैं रंदा पीर फाका नहीं मुकरदा। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਉਧਰ ਹੀ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ avoid लेकिन ਕਰਕੇ इसमें एक और और एडा बड़ा मिनिस्टर बैठे है अब अपना लोहे दे हत्थां वाला ਉਹਨੂੰ नहीं देख रहे और इधर देख रहे हैं। ਇੱਧਰ ਆਪਣਾ ਕੈਮਰਾ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ। लो मैं उधर नहीं, लेकिन इसके अंदर एक और चीज़ होती है कि जब एक बीवी और खामन में आपस में डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं, उसके अंदर कहते हैं 2 आदिल लोगों को बिठाएं। व्हाई डज इस्लाम से कि आदिल लोग कि जिनका बेनिफिट कहीं से भी नहीं है, वो हत्तल इम्कान कोशिश करके रिकनसाइल करें। वो जो प्रोफेसर साहब ने बात की, दैट इज़ एग्जैक्टली जो इस्लाम भी आपको कहता है कि डिवोर्स को बचाने का बेस्ट तरीका ये कि आदिल लोगों को बीच में डाला जाए, जो नॉन आदिल हो, पॉजिटिव लोग, वो कोई डिवोर्स होने नहीं लेकिन जब देंगे। आपको पागल होए तो आप उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको मैं बताता हूँ कि इसमें मीडिया भी बड़ा कसूरवार है एक बात पे, और मैं टीवी पे आपको एक बात बता रहा हूँ Agreed. कि जितने हमारे अखबारात हैं, ख़ासतौर उर्दू के अखबारात, उनमें आप इश्तिहारात देखें इतवार के दिन, आमिल बाबा, बंगाली बाबा, सास कदमों में, महबूब पैरों में, तो ये तो वो, ये शिरक है। और इसको हमारे अखबार के मालकान भी छाप रहे हैं, और हमारे जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, चाहे कोई और इदारे हैं जो उनकी चेक एंड बैलेंस के, इनमें हिम्मत ही नहीं है कि उनको बंद करा दें या रोक दें। यानी इतने गिर चुकी है यानी हमारी इक़्तिदार जो है कि इन चीज़ों को हम पेड एडवर्टाइजिंग के तौर पे ले रहे हैं। और ये आप बताइएगा अपने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को। नहीं, इसके अंदर जो एक मेन इशू है ना कि वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एहसास ज़िम्मेदारी मीडिया के ऊपर होना बहुत ज़रूरी है, जिसके अंदर जो आपने बात की ना, बिल्कुल आपने वो कहते हैं ना कि वो मेख को अपने सर के ऊपर सही क्योंकि ठोका है। जब हम इश्तिहार देते हैं तो लोग उसको ऑथेंटिक समझते हैं। अगर आप ये दीवारों पे पड़े जो लिखे हुए छपे हुए इश्तिहार होते हैं, ये पढ़ें तो हमारी जो कौम है उसको 10,000 बीमारियां हैं। नहीं, एक ही बीमारी है। मेरा बुखारी साहब से क्वेश्चन है, सबकी मिनिस्ट्रीज चेंज होती है, एक म्यूजिकल चेयर चलती रहती है, अगर आपकी चेंज होए या एक्सपेक्टेड हो, इनकी हो ही नहीं सकती। व्हाट वुड यू लाइक टू चूज? हाइपोथेटिकली हम पूछे, पॉलिटिकली करेक्ट जवाब ना दीजिएगा, आपने नहीं बहुत नहीं ज्यादा नहीं नहीं, मैं आपको बिल्कुल दिल की बात बताऊंगा। देखिए, होता ये, यू वांट अ मिनिस्ट्री जहाँ पे आप परफॉर्म कर सके। जी। वजह क्या होती है, जब आप परफॉर्म करते हैं, हर आप मिनिस्ट्री में गैप्स हैं, फिक्र गैप्स बिल्कुल हैं, नहीं गैप्स हैं, लेकिन इट्स अप टू योर इंटेलिजेंस और आपकी कैपेबिलिटी है कि आप उन गैप्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ये सोशल वेलफेयर की मिनिस्ट्री ऐसी है कि जब आपने किसी को खुदे लाइन लगाना हो ना, तो नॉर्मली गवर्नमेंट्स वहाँ पे यार राजी रहे, इसको दे दे। तो इसको वाइब्रेंट आपको बनाना है ताकि आइंदा जब कोई आए ना, लाइन लगे, तो उसके अंदर कहेंगे यार हमें सोशल वेलफेयर चाहिए। दैट्स मेरा एम ये है। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਸਮਝਾਂ, ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ नहीं ਕਿ जी, ਨਾ ही गल सुनो, नहीं मैं एक गल कर ਜਿਹੜੀ मतलब तुसी- अगले इलेक्शन 'ਚ ਦੱਸੇਂਗੇ ਜਾ ਕੇ, उन्हें दस दे उन्होंने। नहीं जी, ना नहीं है तो सब घबराना नहीं, मुझसे बात गल ਇੱਕ कर। ਜ਼ਾਤੀ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਣ ਲਓ ਸਰ। हाँ। ਨਾ ਚੀਨੀ ਨਾ ਆਟਾ, ਨਾ ਜੂਤੀ ਨਾ ਕਪੜਾ, ਨਾ ਚੀਨੀ ਨਾ ਆਟਾ, ਨਾ ਜੂਤੀ ਨਾ ਕਪੜਾ,
लीडर के हुक्म को ठुकराना नहीं है, गुर्बत से मौत आती है तो आ जाए मेरे यार, कायद का फरमान है घबराना नहीं। देखो कितना पॉजिटिव मैसेज है, किसी हालत में घबराना नहीं है, हर ਇਹਨਾਂ ਦਾ मुश्किल में ਪੂਰੀ फाइट करनी है। ਪਲੈਨਿੰਗ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਆਂਦਾ ਇੱਕ जी जी जी। ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ बड़ी गाड़ी आई तो छोटी गाड़ी गई, हैं? बड़ी गाड़ी आई जो छोटी गाड़ी छोटी गाड़ी गई, छोटी गाड़ी आई तो बड़ी गाड़ी गई। ਯਾਨੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਆ ਰਹੀ ਲਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਗੱਡੀ ਤੇ ਬੱਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ ट्रक की बत्ती पीछे सरकार यानी- यानी सैयद बादशाह कोलों भी दे दोगे, जरूरी बैतुल माल चो देना, जेब च हथ मारो इन्ने के पैसे। ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਹੋਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇਖੋ, ਹੋਏਗੀ ਮੁੱਤਮਿਨ ਅਸਾਂ ਦੇਖੋ ਪਿਨ ਕੈਸਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਿਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਕੇ ਫੋਕਸ। ਐਸਾ ਫਕੀਰ ਹੈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਡ ऑर्डर नहीं जे ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ, क्रेडिट कार्ड दी कुछ मशीन लाया है? ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ। ਕਾਰਡ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਬਸ ਖਤਮ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸਲੇ ਪੀਰਾ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ। ਦੁਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਗੋਡੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਸਮਝ ਜਾਓ ਇਸ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 30 ਰੁਪਏ ਕੱਢੋ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਦਈਏ ਤੇ ਘਰ ਚਲੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰ ਦੇਈਏ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੁਆ ਦੇਗਾ ਨਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੁਆ ਨਾ ਅੱਛਾ, ਦੇਵੇ, ਹੁਣ ਜੇ- ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਵਾ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੇ ਉਹ मेरा ਗੱਲ सोच ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ भी ਸਾਹਿਬ आप- ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੰਗਣੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ये ਹੈ। अजमल साहब से कुछ पूछा है आपने अभी? अजमल साहब आपके तरफ देख रहे हैं तो हाथ भी देख लेंगे आप। मैं अभी बहुत ਅਜਮਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ प्रोग्राम ਜੀ के ਇਹ बाद ਵੇਖਣ ਦੇ सब ਜਿਵੇਂ पूछूंगी। ਹਕੀਮ ਥੋੜਾ ਵੇਖਦਾ। नहीं वो कहते अब हमें नहीं बताता कुछ। हमारे साथ पता है क्या करता है अजमल? वो एक आदमी था बेचारा, मुसाफिर था, वो जंगल के पास गया तो बड़ी दूर उसको एक दरख्त के नीचे बाबा मिला, बहुत बुजुर्ग बाबा। तो उसको कहने लगा भाजी ये पिंड कितने हैगा? उन्होंने उसको देखा, कहता है इधरों सीधा चला जा, 2 मील अगे जाके नहर आएगी, सज्जे हत्थ हो जाई, जिथे अपना पैलियां च ब्रेक आती है ना उधरों फिर सज्जे हत्थ हो जाई, अगे गुड़ का दरख्त आएगा, उधरों सज्जे हत्थ होएगा तो अगे तेरा पिंड आएगा। अब वो जा रहा होता है, वो पागल हो जाता है, चल चल के पूरी शाम हो जाती है। शाम तक पहुँचते आगे देखता है तो एंड में वही बोर्ड का दरख्त और वही बाबा बैठा नीचे। कहता है मेरे नाल की कीता, मैनू की दसिया सी? कहना मैं वेख रहा था, तू मेरी गल भी सुनदा है कि नहीं? ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬੇਟੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਨੇ ਯੂ ਟਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। वो हमारा असल में हम नजूमियों को जब हाथ दिखाते ये दिखाते तो हमारा भी एक इला। वो कहते एक बुजुर्ग के पास कोई बंदा जा रहा था, वो हमारी तरह का ही था, पाकिस्तानी। तो वो उसने कहा कि बाबा जी मैनू कुछ दिओ ज्ञानी साहब कुछ दिओ। उन्होंने इधर उधर दुआ की तो सामने पहाड़ सी, पहाड़ नूं उंगल मारी तो पहाड़ सोने का हो गया। उनका जा लै जा, और बुजुर्ग टुर पे, वो फिर पिछे पिछे टुर पे। कहना हुण तैनूं की चाहिए? कहना नाल भी एक पहाड़ है। उन्होंने कहा अच्छा, और फिर दुआ की, उंगल मारी, दूजा पहाड़ भी सोने का हो गया। तो वो टुर पे तो फिर वो पिछों नसदा आ रहा, कहते 2 पहाड़ सोने के हो गए, हुण तैनूं की चाहिए? कहते उंगल चाहिए तुहाडी। ਅਜਮਲ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਤੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕੌਣ ਉਂਗਲ ਮਾਰਦਾ, 2 ਸਾਲ ਫੇਰ ਲੰਘਣਗੇ। ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ। ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੱਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਖੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ एहसास प्रोग्राम। एहसास बहुत एहसास कर एहसास बहुत करना है। हाँ, आप कह रहे थे आपको मिनिस्टर मैं मिनिस्टर नहीं बनना चाहता। ठीक है। मैं थाने का इन्वेस्टिगेशन मोरर बनना चाहता हूँ ताकि मैं सारों को छितर लगा के इस मुल्क के पैसे निकाल। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਸ ਚ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੋ ਸਿੱਧੀ ਲੱਗ ਜਾਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਛਿੱਲ ਲਾ ਦੇ। देखो मेरा मतलब है खा के इस मुल्क नू खा गए ने सारे यार। 72 साल तू खा रहे ने, और किन्ना को और खाना। 2 ਸਾਲ ਹੋਰ ਖਾ ਲੈ। ਨਹੀਂ ਕਿਤਨਾ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕ ਹੈ ਕਿ ਜਾਜੂਜ ਮਾਜੂਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕਰਪਟ ਲੋਕ ਹਰ ਮੁxtਲਿਫ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ? 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ। ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿस्तान ਦੀ कैपेबिलिटी ਦੇ मुकाबले 'ਚ। ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੇ जहांगीर तरीन साहब दे सकते हैं। सर मैं जब आपकी तरफ आ रहा था तो रास्ते में पाकिस्तान का हॉरोस्कोप को बड़ा स्टडी कर रहा था। पाकिस्तान का हॉरोस्कोप ਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੂਟੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਸਰ। ਇੱਧਰ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ नहीं ਹਾਲ वो ਦੱਸੇ। होस्ट है क्या?
12वें घर का लॉर्ड 12वें घर में ਉਹ ਜੀ पहुंच ਉਹ ਗੱਲ ਸੀਰੀਅਸ ਨਾ ਹੋਤੇ मैं सीरियस हो गया ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸੀਰੀਅਸ ਹੁੰਦੇ ਸਰ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਦੇਖ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਰਹਿ ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ हमेशा ਸਮਾਈਲ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਜਾ ਰਹੀ पाकिस्तान हमेशा यहाँ पे वो कहते हैं रूहानियत तसव्वुफ और उसकी अल्लाह की मदद से चल रहा है और जो भी मिलेगा बाहर की यानी कि कह रहे हैं अल्लाह की वजह से आ रहा है अदरवाइज जो एक एस्पेक्ट है उसमें हमेशा पाकिस्तान को लूटा जाएगा कभी भी कोई सिंसियर बंदा कभी नहीं आएगा ਅੱਛਾ ये ਜੀ सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है जो चला रही है और जो इसको चल रहा है ਯਾ ਅੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰਹਿਮ ਪਾ ਦੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਣ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਲਮਕ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਜਿਹੇ ਲੰਗਰ ਖਾਨੇ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 19 ਲੰਗਰਖਾਨੇ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲੰਗਰਖਾਨੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਉਹ 4 ਮੋਬਾਈਲ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਾਓ ਤੇ 19 ਹੀ ਮਿਲਾਓ ਤੇ 23 ਲੰਗਰਖਾਨੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਦੱਸੋ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਗਰੀਬ ਕੀਮਾ ਪਕਾ ਕੇ ਲੈ ਨਾ ਭਾਈਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਪਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਕੀਮਾ ਹੋਰ ਪਾ ਤੇ ਉਹ ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਪੁੱਛ ਲਓ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾ ਦੇਣ ਮਾਲ ਲੋੜ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੁਬਸ਼ਰ ਯਾਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਲੱਭ ਗਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ BMW ਗੱਡੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਮਹੀਨੇ आ ਬਾਅਦ जाएगी ਹੋਰ ਕੀ ਲੋੜ ਨੇ ਸਰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ BMW ਗੱਡੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ नहीं सवाल ही नहीं पैदा होता ऐ नहीं नहीं देना वो नहीं लेकर देंगे इशारा दे देंगे ये खुद खरीद लेंगे ऐसे एक तो- दफा इशारे पे बैठ जाएंगे तो ये खुद खरीद लेंगे ना ये बात समझे आप ਉਸ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਵੀ ਹੋ देने ਜਾਣੇ के काबिल ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਂਝ Tips ਕੁਛ ਦੇ ਰਹੇ ਦੇਣਗੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ लोकेशन बिल्कुल दे रहे हैं ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀ ਚੋਂ ਅਸੀਂ रोजगार ਪੈਂਤੀ की ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। अपना पूरा कार खानदान चल जाएगा कई नस्लें पल जाएंगी बुखारी साहब मुझे बताएं आप सियासत के अलावा क्या आपकी हॉबीज हैं मैं स्पोर्ट्समैन हूँ बेसिकली मैं अभी भी स्विमिंग करता हूँ स्क्वॉश खेलता हूँ नॉट रेगुलरली बट आई डू लेकिन उसके अलावा मैं पढ़ता हूँ और उसके अलावा फैमिली के साथ टाइम मतलब वो नॉन कंट्रोवर्शियल किस्म के जवाब आपने रट के रखे नहीं नहीं ये तो मैंने आपने पूछा और मैंने यानी आप ठग ठीक जवाब ठाक बोरिंग आदमी है। नहीं मैं बोरिंग इसलिए नहीं हूँ कि वो कहते हैं ना कि गपशप लगाने में वो मेरे यारों दोस्तों से पता करें मैं बहुत खुला डुला हूँ इस लिहाज से मैं कभी हेजिटेट नहीं करता हूँ इसको लोग आजकल define- डरते define हैं करें मज़ीद। लोग जो डरते हैं ना कि फ़ोन के ऊपर कोई रिकॉर्डिंग कर रहा होगा ये कर रहा होगा मैंने कभी उस चीज़ को बॉदर नहीं गौर किया नहीं। मैंने कभी परवाह नहीं की मैंने बड़ी खुल के चाहे टेलीविजन पे हूँ कहीं भी मैं ये बहुत अभी खुल तो के जवाब- सेफ है 2 साल के बाद पता चलेगा जब नैब बुलाएगा जब ना। चीजें निकलेंगी नहीं वो नैब तो 100 दफ़ा बुलाए उसके लिए हम हाजिर हैं कोई मसला नहीं है लेकिन देर इज़ नथिंग देर अल्हम्दुलिल्लाह बफज़ल खुदा है कुछ नहीं और खुदा आइंदा भी बचा के रखे आमीन यार मुझे 2-3 लोगों का हॉरोस्कोप का बताएं जरा जल्दी जल्दी वो हमारी मरियम नवाज का क्या बनना है उन्होंने सेल्फ रिजर्व में कॉफ़ी पीनी है जाके कि नहीं सर एज फार एज पॉलिटिकल कैरियर कंसर्न वो अभी ज़ीरो है 0 तो बाहर कॉफ़ी के लिए जाएंगी कि नहीं हाँ वो चली जाएंगी कब आके ये एंड इस साल के एंड तक अभी नहीं इतनी जल्दी नहीं जाती सितंबर तक तो डिप में आएंगी एक दफ़ा हमारे पीपल्स पार्टी का क्या बनना है सर जरदारी साहब के अलावा जिसका मर्जी पूछ लें जरदारी साहब का हमेशा ही धोखा मिलता है उसका और उसको भी धोखे वाला है ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਲੁਕਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਨੇ। नहीं वो तो खैर इन्होंने तो मजाक च गल की थी वो मैं सीरियस नहीं गल सीरियसली बिलावल हेड कर रहे हैं ना जरदारी साहब बिलावल नहीं भी head सर डाउन हो जाएगा कर- क्यों उसका सर वो उसका आप देखिएगा सितंबर के महीने में सितंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मंथ उस पर आपको बहुत कुछ नजर आएगा आयशा गुलाले का क्या पता ये कौन है सर वेल गुड रिप्लाई ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੇ उन्हें दसता वो जैसे पहले बोला था ना शायद भाई ने कि फिर ना ही समझिए हाँ। मतलब इन्होंने बाकियां दा सी फिर ना ही समझिए पीडीएम का क्या बनेगा कुछ नहीं खत्म है वो तो मैं आपको पिछले प्रोग्राम में भी कह दिया था जीरो है कुछ क्या किया उन्होंने कुछ भी नहीं किया ਅਜਮਲ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ अगस्त के बाद ऑरेंज कलर के खरबूजे आना शुरू नहीं अच्छा इरम अहमद का बताएं ये हम प्रोग्राम के बाद पूछेंगे। नहीं नहीं अभी पूछेंगे नाजरीन सुनना मुझे- चाहते नहीं नाजरीन नहीं जानना चाहते डेट ऑफ बर्थ ही नहीं बताई हाँ, सर उन्होंने और ये हैं ये हमें ईयर ऑफ बर्थ नहीं बताती आपको डेट ऑफ बर्थ कैसे बताएंगे हाँ तो ये एक राज में रहेगी बात और ये हम बाद में डिस्कस करेंगे बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हमारा टाइम खत्म होता है इट वाज अ प्लेजर हैविंग बोथ ऑफ यू हियर बहुत मजा आया आई थिंक आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਚੱਲਾਂ ਮੁਬਸ਼ਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ नहीं ਅਸੀਂ रोटी पावांगे थानू वाले इसके बाद जो है आपके पास बहुत टाइम होगा मांगने के लिए आप मांगते रहिएगा थैंक यू सो मच आप लोगों का आने का बहुत मजा आया बहुत अच्छा लगा थैंक यू फॉर वॉचिंग व्यूअर्स प्लीज कीप वॉचिंग अल्लाह हाफिज